My name is Brock Lesnar, and I'm the baddest man on this planet. उसके रिंग में एंटर करते ही पूरा माहौल बदल जाता है। बड़े बड़े रेसलर्स भी उससे डरते थे। I enjoy hurting people. It's Brock Lesnar's world. We're just in it. एक मॉन्स्टर इंसान के रूप में रेसलिंग की दुनिया का सबसे क्रेडिबल नाम ऐसा जैसे बिजली कड़क रही हो। I think there's a part of him that likes to be intimidating to people. वो जीतने के लिए नहीं बल्कि डोमिनेट करने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि लेज़नर को वो फीलिंग बहुत पसंद है जब उनका ओपोनेंट उनसे रहम की भीख मांग रहा हो। What is it like to simply maul somebody? Well, it's a good feeling. Handling another human being and making them feel less than you was something that I got a thrill out of. Born to fight to kill, ready to die, but I never will. Who is Brock Lesnar? I'm an ass-kicking son of a bitch. I don't respect anybody. I don't care what people think about me. I could give two who I piss off throughout my entire day. Oh, none like the best. Hey, don't break the table, obviously. Crazy at times, dealing with Brock Lesnar, I'm sure. He has a very, very unique personality. Hi! I'm Brock Lesnar, and I'm back! कुछ लोग उसके स्टाइल के फैन हैं तो कुछ उससे नफरत करते हैं। ब्रॉक लेसनर को आज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक फॉर्मर एम्प्लॉई ने एक्स WWE बॉस विंस मैकमैन पर सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगाए हैं। इस लॉ सूट में लेसनर का भी जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि वो मैकमैन के गंदे कामों में शामिल थे। हालांकि कोर्ट में इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई फैंस गुस्से में हैं क्योंकि ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। Brock put his finger in her vagina, clamps down and squeezes with his right hand. He exposed himself to me at the Insurrection pay-per-view. Brock did the whole thing. ऐसा लगा कि स्कैंडलस हेडलाइंस से ब्रॉक का करियर खतरे में है, लेकिन कमबैक पर रिएक्शन आज भी उतना ही बड़ा था। लेसनर अपने सबसे खतरनाक रूप में वापस आए, पहले से भी बड़ी बॉडी के साथ। स्टीरॉयड यूज के आरोप लेसनर पर आज भी लगाए जाते हैं। सवाल किए जाने पर वो हमेशा इन्हें टाल देते हैं। Just so big, and if you come out of the world of pro wrestling. We're done. इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हमारी कोशिश रहेगी ब्रॉक लेसनर को समझने की, बिना शॉर्टकट और बिना किसी आसान एक्सप्लेनेशन के। हम एक रेयर नजर डालते हैं उसकी प्राइवेट लाइफ में, देखते हैं सक्सेसेस के बिहाइंड द सीन्स और सुनाते हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जो बाहर से भयानक है और अंदर से उतना ही नाजुक भी। He's an interesting dude. Everything that you've heard about him and read about him is dead on. You know, he was actually saying things that would probably get him canceled, like homophobic terms that you shouldn't be saying. Well, really, I'm no different on TV than I really am. I really don't like people. I'm sorry, I don't. If Brock is your friend, he will give you the shirt off his back. Nicest guy in the world, fun, cool to hang around with. He doesn't like you. He's what you're seeing on TV. That's not an act. ब्रॉक लेसनर के कई चेहरे हैं। स्कूल का बुली, बार का गुंडा, स्पॉटलाइट का एंटरटेनर, बहुत ही अमीर बिजनेसमैन, दुनिया का बेस्ट फाइटर और इसके साथ वफादार दोस्त, सपोर्टिव बाप, एक पति जिसे घर वापस आना बहुत पसंद है, पूरी कॉन्ट्रडिक्शंस से भरी जिंदगी, एक आदमी जो फंसा है लड़ाई और जिम्मेदारी में, स्टेज और प्राइवेट लाइफ में, एक आदमी और एक बीस्ट के बीच। उसका म्यूजिक टेस्ट उसके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। I'm a hardcore country guy. And then on the other side of things, Metallica, AC/DC. ब्रॉक लेसनर के दो पहलू हैं जो बार बार सामने आते हैं। एक तरफ शांत फार्मर, दूसरी तरफ अग्रेसिव ब्रॉलर। If God was to sit there and like build a warrior, I think it would come out to be Brock Lesnar. That is one big dude.
Brock Lesnar is a bona fide monster. Athletically, Brock Lesnar is far superior to anyone. The animal is licking his lip. Brock Lesnar does what Brock Lesnar wants to do. God's gifted me with great looks and one hell of a body, you know? And that helps. When you got this going on, girl. ब्रॉक लेसनर को स्पॉटलाइट पसंद है, लेकिन वो उसे अवॉइड भी करते हैं। वो उसे एंजॉय तो करते हैं, पर उससे उबरने में उन्हें हफ्तों लग जाते हैं। उनका असली टैलेंट है फाइट करना और स्क्रिप्टेड फाइट्स को रियल दिखाना। दोनों में वो वर्ल्ड क्लास हैं। I never turned down a fight, even as a young kid. I hate to say it, but ever since I was a little kid, I just been a bully. ब्रॉक लेसनर की रूट्स उसके बारे में बहुत कुछ बताती हैं और आज भी उसे शेप करती हैं। I grew up in South Dakota. Brock Edward Lesnar. He weighed 9'9", and they called him Pork Chops. Yeah, this is the farm I grew up on. We used to have about 200 head of cows. I left here in 1996. ब्रॉक लेसनर का बचपन एक्शन फिगर्स और मैच बॉक्स कार्स से भरा नहीं था। उन्हें रोज गायों से दूध निकालना और पूरा बांध साफ करना होता था। उनका प्लेग्राउंड खुला खेत था और उनके खिलौने थे खेत की हैवी मशीनरी। Even at the age of 4 and 5, he wanted to help on the farm. He was really a worker. उनकी रॉ स्ट्रेंथ सुबह से शाम तक की कड़ी मेहनत से आती थी और सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। He liked showing off his muscles. I was always active. I was always doing push-ups, always doing sit-ups, always working out as long as I can remember. It's kind of backwoodsy, you know, kind of out in the country. Not a lot going on. Everybody knows everybody, and everybody knows everybody's business. Used to have some good times here and some hard times. We didn't have a hell of a lot to, you know, there wasn't extra money left over for us. You just get used to living like, you know, like you're broke, and we were broke. And so you just get, it's a way of life. होमटाउन वेबस्टर के लोग आज भी उसे याद करते हैं। Brock was robust. Very independent, headstrong. I don't think his arms were figuring that around. Oh, I've known Brock since he was, gosh, do I dare to tell him? Since you were in diapers? लेकिन ब्रॉक गलत चीजों की वजह से भी मशहूर थे। I was a very aggressive young kid, eager to do anything, always up for any challenges. As a young kid, I was a kid that was beating up the other kids on the playground. I always had a chip on my shoulder, and I still do. I don't know why, but that's just my attitude. जिस किसी ने भी ब्रॉक को बड़े होते देखा है, वो यही कहते हैं कि उन्होंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। लेसनर अपने आप को कभी रोने नहीं देता था। कई बार बच्चे खुद को रोने से रोक लेते हैं ताकि वो वीक ना दिखें, या फिर उन्हें ऐसा ही सिखाया जाता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि बचपन में दबाए गए नेगेटिव इमोशंस अक्सर एग्रेसिव बिहेवियर में बदल जाते हैं। जब बच्चे अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते, तब वही इमोशंस किसी और चीज के जरिए बाहर आते हैं। ब्रॉक के लिए दुख ने गुस्से का रूप ले लिया और दर्द सीधे अग्रेशन में बदल गया। बचपन से ही वो लड़ाइयों के जरिए अपना गुस्सा बाहर निकालता था। ऐसा बिहेवियर लोगों को गलत लग सकता है, पर ब्रॉक के लिए वो उसकी शील्ड था ताकि वो कभी भी कमजोर दिखाई ना दे। लेकिन रेसलिंग शुरू करने से सब बदल गया। अब वो रेसलिंग मैट पर अपना गुस्सा निकाल सकता था, वो भी बिना किसी मुसीबत में पड़े। I can remember people being scared to wrestle me because I was very physical. If you wrestle me, you're going to get beat up. Other people have feelings, but I don't have feelings. उसके रेसलिंग कोच को याद है कि ब्रॉक कुछ पॉइंट्स हारने से ही गुस्से से पागल हो जाता था। He always had a little bit of a temper and was very aggressive. लेकिन एक प्रॉब्लम थी। बार बार ब्रॉक लिमिट से ज्यादा वजन पर compete करता था। हर मैच से पहले यही ड्रामा होता था कि वो बहुत हैवी हैं। ब्रॉक ने वजन कम करने की कोशिश भी की, पर वो कर नहीं पाए। So we just decided that he was going to be a big guy and we'd keep feeding him. Yeah, I was always hungry. Always. It was like I had a tapeworm. When he worked for me on the farm, we had 7 hired men and our own kids, and we would eat one meal and my mother would make a separate meal for Brock because he would eat all ours if we didn't. उसके बड़े साइज ने उसे बाकी स्पोर्ट्स में भी मदद की। ब्रॉक अपने स्कूल के काफी बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर भी थे। Yeah, I was good. I had more scholarship opportunities as a football player. I had 0 opportunities as a wrestler coming out of high school. लेकिन हाई स्कूल के बाद ब्रॉक लेसनर भटके हुए से थे।
कंट्री लाइफ काफी सिंपल और बोरिंग थी। यहाँ जो भी यंग था वो अपने एडवेंचर्स खुद ढूंढता था। ब्रॉक को हंटिंग का बहुत शौक था। वो पूरा दिन जंगलों में ड्राइव करता रहता था और शराब तो वो रोज ही पीने लगा था। आजादी और खालीपन के बीच उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद के साथ क्या करे। वो काफी अलग सा महसूस करता था। ब्रॉक के मुताबिक वो एक वाइकिंग बनना चाहता था, एक योद्धा पुराने जमाने से। It would be good to be a medieval soldier and a swordsman. Like, here's many of my swords. ब्रॉक ने 17 की उम्र में मिलिट्री ज्वाइन कर ली। उसे बस वेबस्टर से बाहर निकलना था क्योंकि वो पूरी तरह बोर हो चुका था। उसे लगा था कि सोल्जर की जिंदगी एक्शन से भरी होगी। वो एक्सप्लोसिव स्क्वाड ज्वाइन करना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। टेस्ट से पता चला कि ब्रॉक कलर ब्लाइंड है। उन्हें रेड ग्रीन वीकनेस है। शूटिंग और एक्सप्लोजन्स की जगह उसे एक डेस्क जॉब मिली जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक सिंपल कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट फेल करने पर उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया। वेबस्टर वापस आकर उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली। I spent almost 2 months in the basement that I was living in the house that we were renting. And I fell into probably some depression, where I fell into a rut where I didn't know what I wanted to do with myself. इस दौरान लेज़नर की एक के बाद एक लड़ाइयां होती रहीं। उसके दोस्त पार्टीज में मस्ती करने जाते थे और वो वहां बस किसी न किसी से लड़ने जाता था। He likes to beat on people. He grew up beating on people. Him and his brothers were fighting all the time. ब्रॉक के बड़े भाई भी लोहे की तरह मजबूत थे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। I grew up 6 years younger than my 2 older brothers who were getting out of jail on Monday mornings to go to school because of street fights and you know. उनकी माँ उनसे बहुत परेशान रहती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब बच्चों की लड़ाई न हुई हो। When did you stop getting picked on as the little brother? When I was 19 and I kicked my brother. It was just World War III in our house. I fought my older brothers, put them through the kitchen tables when I finally grew up. ब्रॉक बताते हैं कि एक बार अपने भाई से लड़ते लड़ते उन्होंने पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा दी थी। All kinds of things throughout the house got broken, but we got it settled and we moved on from there. उनके पेरेंट्स इस सब से बहुत तंग आ चुके थे। उन्होंने चैन की सांस ली जब ब्रॉक ने कहा कि वो घर छोड़ रहा है। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लड़कियों को वो कुछ खास पसंद नहीं आते थे। लेसनर सारा टाइम सिर्फ खुद पर ही फोकस करते थे। वो पढ़ाई भी नहीं करते थे। लेक्चर्स, कोर्सेज, एग्जाम्स उन्होंने सब मिस कर दिए। वो कॉलेज बस स्पोर्ट्स के लिए गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में उन्होंने अपना रूम एक और रेसलर शेल्टन बेंजामिन के साथ शेयर किया। दोनों आज भी काफी अच्छे दोस्त हैं। लेसनर वाकई कमाल के रेसलर थे। उनके कोचेज ने ऐसा रेसलर पहले कभी नहीं देखा था। Brock Lesnar from Minnesota is your heavyweight champion in the year 2000. ब्रॉक लेसनर ने NCAA हेवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली और पूरे USA के बेस्ट रेसलर बन गए। ब्रॉक लेसनर आज भी इसे अपनी जिंदगी की सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट मानते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। WWE स्काउट्स ने लेसनर को नोटिस कर लिया था और वो उन्हें साइन करने के लिए बेताब थे। I'd never watched a lick of wrestling, and I'm like, oh man, that's not wrestling. That's like, that ain't real. But then they slapped a lot of money on the table, only $250,000. Brock Lesnar was immediately recruited by WWE and signed what was at the time the biggest developmental contract in sports entertainment history, and deservedly so. ब्रॉक लेसनर अब WWE की जूनियर लीग ओहायो वैली रेसलिंग OVW का हिस्सा थे। यहीं उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई जो दशकों तक उसके करियर को शेप करने वाला था, पॉल हेमन, जिसने पहली नजर में ही उसकी काबिलियत पहचान ली। उनके लिए लेसनर एक कच्चा हीरा था जिसे तराशने की जरूरत थी। I am coming to seek and destroy. ट्रेनिंग के दौरान भी लेसनर सबसे अलग नजर आते थे। जहां दूसरे रेसलर्स को मूव्स सीखने में महीनों लग जाते थे, ब्रॉक उन्हें बड़ी आसानी से परफॉर्म कर लेता था।
एक बार उसने बिना किसी ट्रेनिंग के ही शूटिंग स्टार प्रेस परफॉर्म कर दिया। ब्रॉक की लैंडिंग एक हाई फ्लायर रेसलर जितनी परफेक्ट थी। Brock is a freak of nature. He's the most talented, most gifted athlete I've ever seen in my life. He's a guy, you put him in any era and it's going to work. He's a once in a lifetime athlete. लेकिन ब्रॉक जितना रिंग में इंप्रेसिव थे, उतना ही रिंग के बाहर लोग उससे नफरत करते थे। वो एक घमंडी यंगस्टर था जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता था और हर बात पर वो सीधे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। उदाहरण के तौर पर मैनेजर कैनी बोलिन। लेसनर ने आरोप लगाया कि बोलिन ने उसकी गर्लफ्रेंड को किस किया, लेकिन बोलिन और ब्रॉक की गर्लफ्रेंड दोनों ने ही इसे मानने से इनकार कर दिया। She says, Brock, he never touched me. A hand to God, he turns to her and he says, shut up, bitch, you know better. She gave him a look like, well, this relationship just ended. फिर भी ब्रॉक लेसनर ने केनी बोलिन को मुक्का मार दिया और बाकी रेसलर्स को बीच में आकर ये सब सुलझाना पड़ा। ऐसे किस्से बार बार होने लगे। यंग ब्रॉक एक बहुत ही घटिया इंसान था। वो हर बार बस लड़ने की वजह ढूंढता रहता था और बिना किसी कारण लोगों पर अपना गुस्सा निकालता रहता था। इसी वजह से आज भी कई फॉर्मर कलीग्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ लोग OVW में लेसनर पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाते हैं। वो उस घटना के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। विक्टिम का नाम स्टेसी कॉर्नेट था, जो जिम कॉर्नेट की गर्लफ्रेंड थी। जिम कॉर्नेट OVW के क्रिएटिव डायरेक्टर और लेसनर के सुपरवाइजर थे। That calls for Brock to pick Stacy up over his head. And Stacy said, that's fine, but I just got my vagina pierced today and it's very sore. Anyway, so he's telling Stacy all day, when I get you up there, I'm gonna squeeze it. She's like, brother, don't do that. Brock picks her up and not only touches the vagina, Brock put his finger in her vagina. Fucking clamps down and squeezes with his right hand. जिम कॉर्नेट बैकस्टेज बहुत गुस्से में थे और लेसनर को फायर करना चाहते थे, लेकिन यह फैसला उनके हाथ में नहीं था। फाइनल डिसीजन जिम रॉस और विंस मैकमैन का था। वो लेसनर को एक टॉप स्टार देखते थे, इसलिए उन्होंने उसे इस सिचुएशन से बचा लिया। लेसनर को कंपनी से नहीं निकाला गया। बिल्कुल स्कूल की तरह यहां भी वो रेसलिंग स्कूल का सबसे बड़ा बुली था। उसने एक बार एक यंग रेफरी तक को रुला दिया था। वो उस पर बार बार चिल्लाता, डराता और मारने की धमकी देता रहता था। जो लोग उसे कमजोर लगते थे, लेसनर उन्हें अपने से नीचे देखता था। लेसनर उन लोगों की रिस्पेक्ट करता था जो उससे साइज में बड़े हों या जो लड़ाई में उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। जैसे बिग शो, दोनों अच्छे दोस्त बने और साथ में ईटिंग कॉम्पिटिशन्स भी करते थे। रूमर्स कहती हैं कि वो एक बार में 20 स्टेक्स या 50 बर्गर्स खा लेते थे। ये नंबर सच हैं या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ब्रॉक लेसनर की भूख वाकई बहुत ज्यादा थी। लेसनर अब डेवलपमेंटल से बोर हो चुके थे। Brock Lesnar had learned all he was going to learn in developmental. And he was tired of developmental money. So Brock made a decision. Move me up to the main roster or kiss my ass goodbye. लेसनर ने कुछ डार्क मैचेस लड़े, ऐसे मैचेस जो टीवी पर नहीं दिखाए जाते। बैकस्टेज ब्रॉक लेसनर पहली बार विंस मैकमैन से मिले। विंस उसके साइज और बॉडी से काफी इंप्रेस हुए और उससे बहुत प्यार से बात की। उस दिन के बाद से विंस ब्रॉक की लगातार तारीफ करने लगे और उसे अपने घर पर भी बुलाया। लेसनर को इज्जत मिली और वो नई चीजें सीखने के लिए रेडी थे। You know, you spend a lot of time going up and down the road. The best time to learn is in the car. I would ask Kane and Taker. केन और अंडरटेकर ने उसे मैच साइकोलॉजी सिखाई कि एक अच्छे मैच का स्ट्रक्चर क्या होता है और फैंस के साथ कैसे इंटरैक्ट करना होता है। वो तीनों साथ में ट्रेन करते थे। लेसनर और केन दोनों जिम की हर मशीन को मैक्सिमम पर सेट करने और हर बारबेल को पूरा भरने के लिए बदनाम थे। बैकस्टेज सबको बहुत जल्दी समझ आ गया कि लेसनर काफी स्पेशल हैं। ब्रॉक लेसनर के मैचेस देखने के लिए दूसरे रेसलर्स कर्टन के पीछे जमा हो जाते थे। वेटरन्स हैरान थे क्योंकि ब्रॉक कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। इन लेसनर को साफ पता था कि वो क्या कर रहे हैं। पास्ट के फाइटिंग एक्सपीरियंस ने उसके लिए WWE फाइट्स को असली दिखाना काफी आसान बना दिया था।
He's actually, from my experience, way stronger than he even looks. He's like the Incredible Hulk. वेटरन्स के साथ मैचेस में लेसनर पहले ही कंट्रोल जमा लेते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई एक्सपीरियंस्ड रेसलर उन्हें गाइड करे। He just took it into his own hands to pick me up and slam me on the mat as hard as he could. I didn't know it was coming, but it showed that he's not going to be intimidated just because I'm Booker T and I've been around this business for a while. ब्रॉक शुरू से ही रिंग में अपनी मर्जी करते थे, लेकिन वो ये सब बड़े स्मार्ट और सही तरीके से करते थे, जिससे उन्होंने बाकी रेसलर्स की रिस्पेक्ट जीती। ऊपर से वो अपने ओपोनेंट से रियल लाइफ में भी स्ट्रांग थे। इस बात को बैक स्टेज मार्क हेनरी के साथ हुई एक लड़ाई ने भी साबित कर दिया था। मार्क हेनरी 2 बार ओलंपिक वेट लिफ्टर रह चुके हैं। शुरुआत तो एक स्ट्रेंथ टेस्ट से हुई थी, जो बहुत ही जल्द असली लड़ाई में बदल गई। Brock, the only person ever I feel like I got beat in a fight. That's the only person that ever handed me my ass. सब लोग लेसनर को लेकर एक्साइटेड थे, सिवाय एक वेटरन के हार्डकोर हॉली। हॉली यंग रेसलर्स को टेस्ट करने के लिए बदनाम थे। वो उनके साथ काफी रफ स्टाइल में रेसल करते थे। कॉलीग्स कहते हैं कि हॉली लगभग सभी यंग रेसलर्स से नफरत करते थे। वो उन्हें पूरी ताकत से पसलियों पर लात मारते, उनके बाल नोच लेते और अपना जूता उनके चेहरे पर रगड़ देते थे। टफ इनफ के दौरान तो उन्होंने एक नए रेसलर मैट कैपोटेली का खून तक निकाल दिया था। जब हार्डकोर हॉली ने ब्रॉक लेसनर के खिलाफ रिंग में कदम रखा तो माहौल काफी इंटेंस था। दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और इसका अंत एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के साथ हुआ। When Brock turns into bully mode, this guy can do damage like no other. हॉली के स्ट्राइक्स काफी हार्ड थे, लेकिन लेसनर उन्हें झेल गए। जब लेसनर एक पावर बॉम्ब के लिए जा रहे थे, वहां सब गलत हो गया। He fell onto his head and landed right on top of his head. I mean, it was really bad. It didn't look as bad on TV, but if you slow it down, you could tell Bob messed his neck up pretty bad. कुछ लोग दावा करते हैं कि हॉली ने ब्रॉक की मदद नहीं की। उन्होंने जानबूझकर पावर बॉम्ब को एग्जीक्यूट करना मुश्किल बना दिया ताकि लेसनर वीक दिखे। लेसनर ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हॉली को गर्दन के बल फेंक दिया। बाकियों का कहना है कि यह महज एक एक्सीडेंट था। हालांकि ये साफ नहीं है कि लेसनर ने हॉली को इतनी खतरनाक पोजीशन से सीधे क्यों गिरा दिया। बाद में हार्डकोर हॉली ने कहा कि उनके और ब्रॉक लेसनर के बीच सब ठीक है, फिर भी अलग अलग कहानियां घूमती रहती हैं। मगर अब लेसनर ने बाकी रेसलर्स, ऑफिशियल्स और फैंस सबकी रिस्पेक्ट जीत ली थी। विंस मैकमैन उसे अगला बड़ा स्टार देखते थे। I got a rocket strapped to my ass. Now let's send this kid to the moon and see if he can survive. डेब्यू के सिर्फ कुछ महीनों बाद ब्रॉक लेसनर ने किंग ऑफ द रिंग जीत लिया। इस जीत ने उसे समर स्लैम में द रॉक के खिलाफ टॉप टाइटल मैच तक पहुंचा दिया। सिर्फ 25 साल की उम्र में वो यंगेस्ट एवर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए। उसी साल लेसनर ने टेकर की वाइफ को धमकाया और दोनों का बेहद खतरनाक फ्यूड हुआ, जिसने लेसनर को एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर की तरह एस्टैब्लिश कर दिया। Propane tank off the arm of the Undertaker. Viciousness, athleticism, and raw strength and energy, and he had those intangibles that it's hard to teach people. अगला शिकार हल्क होगन थे। ब्रॉक ने हल्क को रिंग में बुरी तरह रगड़ दिया। अब बारी थी बिग शो की, एक जायंट जिसे कोई उठा तक नहीं पाता था। लेकिन लेसनर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। बिग शो खुद बहुत हैरान थे। उन्हें पहली बार किसी ने बच्चे की तरह उठाया था और बिना किसी परेशानी के मैट पर पटक दिया था। लेकिन असली मोमेंट कुछ समय बाद आया, जब ब्रॉक लेसनर ने बिग शो को टॉप रोप से सुप्लेक्स दिया तो पूरी रिंग तबाह हो गई। ये आज भी रेसलिंग के सबसे लेजेंडरी मोमेंट्स में से एक माना जाता है। ब्रॉक रेसलिंग के टॉप पर पहुंच चुके थे और उन्हें इस काम में मजा भी आने लगा था। There's some nights I lay in bed and really believe that God put me on this earth to be a professional wrestler. To me, the business was so new and so intriguing. And when I first got on the road, I was going up and down the road
drinking beers, staying in different hotels. It was all very intriguing and stimulating in the beginning, So yeah, got me a couple divorces. लेसनर ने करोड़ों कमाए, लेकिन किसी ने उन्हें पैसे संभालना नहीं सिखाया। वो ये सारे पैसे उड़ा देते थे। It's living the life of a rock star. I had 2 Hummers, Mercedes, Corvette. Living large. I was living, airplanes, 4 or 5 houses. कुछ ही समय में ये सारी कामयाबी लेसनर के सिर पर चढ़ गई। मैट हार्डी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शुरुआती दिनों में लेसनर काफी हम्बल और ग्रेटफुल थे। I remember every time we do something for Brock, I remember he gave me the F5 on the stage one time, which hurt like shit. But I just remember after Brock was just so thankful. Afterwards, oh my God, thank you, man. That was so great. If there's everything I can do to pay you back, I will. Thank you guys so much for helping me. लेकिन उन्होंने ये वादा कभी पूरा नहीं किया। मैट हार्डी उनके खिलाफ एक मैच में थोड़ा ऑफेंस चाहते थे, पर ब्रॉक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। At this point, he'd been the champion and he was the top guy, and he could have really helped elevate me there by going out and having a good match and hanging with him one-on-one. And he kept trying to cut my shit out. And he's like, oh, I don't know, man. It kind of makes me look weak. I don't think you should do that. You should do this. What about motherfucking, you said you make sure if there's everything I can do for you that I'm going to help you. That was a big change in Brock. लेसनर अक्सर अपने कॉलीग्स से झगड़ते रहते थे। एक यूरोपियन टूर के बाद की रिटर्न फ्लाइट में ये बात हद से आगे बढ़ गई। It was full of booze and Vicodin and stuck on an airplane for 7 hours on an overseas trip. What else are you going to do besides maybe pass out and fall asleep or get into trouble? And we did both. फ्लाइट में सिर्फ फर्स्ट क्लास सीट्स थीं और एक ओपन बार था ताकि रेसलर्स कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए। लेसनर ने विस्की पी और सोने चले गए। फिर कर्ट हेनिग ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने ब्रॉक के साथ प्रैंक करने की कोशिश की। Brock was sitting in his chair and Kurt Hennig put shaving cream on his head. He went splat and splattered on his head. Next thing I know, Brock is chasing Kurt like a full sprint, like wham, wham. Brock went right behind him. Yeah, we got into a scuffle on the plane. Yeah, I mean, it's called whiskey wrestling. Have you ever done it? You should try it sometime. लेसनर और हेनिग पूरे प्लेन में लड़ रहे थे। कई बार तो वे सो रहे रेसलर्स पर जा गिरे और प्लेन के कई कंपार्टमेंट्स तोड़ दिए। Brock picks Kurt up, and then they hit the emergency door. This was a big boom. Everyone jumped up, and we're like, stop, stop. बाकी रेसलर्स को ये लड़ाई रोकनी पड़ी, जिसमें ट्रिपल एच भी शामिल थे। I was drunk and high. I couldn't even tell you what happened. All I know is when we got off the plane, we got reprimanded, and that's it. कुछ दिनों बाद ही WWE ने हेनिंग को फायर कर दिया, लेकिन लेसनर के साथ कुछ नहीं हुआ। कहा गया कि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। WWE उन्हें खोना नहीं चाहती थी, और इसी चीज ने लेसनर को बाकी सिचुएशंस में भी बचाए रखा। I remember that night I was doing interviews. Trish and Jackie in a tag team match. I was backstage, and I hear my name called. Dustin was in the room, my ex-husband at the time. And Brock did the whole thing. He exposed himself to me like a real dick. I no-sold it, went to my dressing room. Dustin came in, he's like, let it lie. उस दौर में ऐसी घटनाओं को ज्यादा बाहर नहीं आने दिया जाता था। उस समय रेसलिंग की दुनिया में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता था। कई मामलों को कंपनी के अंदर ही दबा दिया जाता था ताकि पब्लिक स्कैंडल से बचा जा सके। उस समय कल्चर ही कुछ ऐसा था। बैकस्टेज अल्कोहल और पेन किलर्स पानी की तरह मिलते थे। जैसे वेटरन्स कहते, वैसे ही यंग रेसलर्स को करना पड़ता था। अगर कोई मना करता तो उसकी जॉब खतरे में आ सकती थी। लेसनर एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहा था जहां तुम्हें तब तक सहा जाता था जब तक तुम कंपनी को बहुत पैसा बनाकर दे रहे हो। एक ऐसा सिस्टम जहां टॉप स्टार कुछ भी कर सकता था।
एक दोपहर को शो से पहले लेसनर कुछ रेसलर्स के साथ बैठे थे। सब पोकर खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तभी ब्रुकलिन ब्रॉलर ने लेसनर से पूछा, क्या तुम कर्ट एंगल को रियल फाइट में हरा सकते हो? वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुका है। Brock said he's too small, I'd kill him. So I walked up to Brock. By the way, you said you could whoop my butt. Let's get in the ring. Thinking to myself, well, who's going to break this one up if it starts going sideways? Kurt Angle's version said he beat Brock Lesnar. I haven't heard that version from other people. It was two guys who started out just kind of, goofing around and, tussling and, hey, oh, you got a takedown on me. Oh, you got a takedown on me. And the next thing you know, for 30 minutes, they just were taking each other down. We actually got along even better afterward. वक्त के साथ कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर काफी अच्छे दोस्त बन गए। रेसलिंग बैकग्राउंड होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे। You're not going to take that killer instinct out of him. So you know what? When you go out there and you wrestle him, you better be ready and you better be prepared to possibly get injured. Although we're in entertainment. But that's what Brock Lesnar brings to the table. He's real. When me and Kurt Angle got in the squared circle together, there was a lot of real things going on in there. Brock and I are both stiff as hell. When you hear that somebody's light, that means you barely feel anything. If they throw a punch or a kick, it's not as brutal as a person who's stiff. Brock and I are the two stiffest guys in the business. I'm going to bring the pain. Kurt had neck problems way back, but I threw Kurt into the turnbuckle and came in, hit him very hard, and I broke his neck that night. Me and Kurt went at it. He hit me hard and I hit him back harder. दोनों ने कई शानदार मैचेस दिए। इनमें WWE हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट आयरन मैन मैचेस और रेसलमेनिया 19 का मेन इवेंट भी शामिल है। शूटिंग स्टार प्रेस रेसलमेनिया का बड़ा मोमेंट होने वाला था, लेकिन वहां एक एक्सीडेंट हो गया। The coolest moment was Brock's dumbest moment. And Lesnar landed on the back of his head. That's 290 pounds coming down on your neck. I thought I just watched somebody die. Any normal person, I don't think, I think it would have snapped in two, but I'm very lucky. Being in front of all those people, having the anxiety, all these things racing through my head, I second guessed myself. It was horrifying. We didn't know Brock had broken his neck. ब्रॉक को उस रात का कुछ भी याद नहीं है। उसने सिर्फ इंस्टिंक्ट पर मैच खत्म किया था। बैकस्टेज माहौल काफी गर्म था। दर्जनों आवाजें ब्रॉक लेसनर को घेरे खड़ी थीं। कुछ उसका हाल पूछ रहे थे और कुछ उसे डांट रहे थे। Now all these people surrounded me. People are grabbing me and doing this and doing that and wanted me down the stretcher and wanted me in the ambulance, and I wasn't having any of that. Everybody said that I was hard to handle. And I can imagine I was probably. ब्रॉक लेसनर को डॉक्टर्स या मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसी रात हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। WWE एग्जीक्यूटिव्स को ये बात बहुत गलत लगी। वो ब्रॉक लेसनर को खुद से ही बचाना चाहते थे। यही रवैया उनके पूरे करियर में बना रहा और बाद में ये लगभग जानलेवा साबित हुआ। ब्रॉक लेसनर 2002 में पिता बने अपनी उस समय की मंगेतर निकोल मैक्लेन के साथ, जो एक मॉडल थीं और हंटिंग का पैशन रखती थीं। उनके जुड़वा बच्चे हुए लूक और माया लिन लेसनर। लेकिन ब्रॉक लेसनर के लिए ये जिम्मेदारी भारी पड़ने लगी। When you're young, it's fresh and it's cool, but is it really cool to be up all night, not getting any sleep, and then getting on an airplane, getting off an airplane, trying to find a place to eat, dealing with people at the rental car service, dealing with TSA, dealing with the hotel, or dealing with the loss of your luggage? What's cool about it? लेसनर की रूटीन बहुत ज्यादा हेक्टिक थी। इससे निपटने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लिया। There's like 2 years that I don't remember my life. Vodka and pain pills. That's why I don't remember it. You're gone 300 days a year and you're miserable climbing the walls and in the locker room waiting to come through the curtain in a different town every night that is exactly the same as the night before. All right, Brock, explain where you are and what you're doing. Where am I today?
लगातार मीडिया अपॉइंटमेंट्स और कमर्शियल शूट से लेसनर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। There are pressures that you don't see, that nobody knows about, sacrifices you have to make. That is a ton of pressure. And then you add in how much pain you're in because you're wrestling over 200 times a year and what that can do. I felt entrapped. I felt like I was a trapped animal. I was built to be in the ring. I wasn't built to get from ring to ring. I just didn't like to travel. I'm just a simple man, and it was just too much for me at the time. I can remember times being on an airplane and wanting to punch the door open and jump out of the plane. ब्रॉक लेसनर को शोज के बीच की लंबी फ्लाइट से सबसे ज्यादा नफरत थी। इस स्ट्रेस से बचने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट जेट खरीदा। फिर भी उसकी जॉब काफी स्ट्रेसफुल थी। अभी भी उसका स्केड्यूल पूरी तरह पैक्ड था। It is hard work. You have to go and perform every single night. You're a hamster on a treadmill. And that's how I felt. लॉकर रूम में भी लेसनर खुद को अलग ही रखते थे। निकोल मैक्लेन के साथ ब्रॉक लेसनर का रिश्ता टूट गया। उनके मुताबिक लेसनर उन पर चीट करते थे और ड्रग्स के नशे में बार बार उनसे लड़ाई करते रहते थे। तो उन्होंने लेसनर से पूरी तरह कांटेक्ट तोड़ दिया। इसी दौरान ब्रॉक लेसनर की बैकस्टेज बुरी इमेज बन गई थी। वो ज्यादातर अकेले रहते थे और कोई उन्हें ज्यादा टोकता नहीं था क्योंकि वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे। ब्रॉक लेसनर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि उस समय उनका गुस्सा सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं था। अजनबी लोग जो ऑटोग्राफ मांगते थे या ड्राइवर्स जो अपना काम ढंग से नहीं करते थे, ये सब उन्हें फ्रस्ट्रेट करते थे। वो इन सब लोगों को मार गिराना चाहते थे। He quickly grew to being miserable. And I knew Brock had to get out. Because a miserable Brock Lesnar is not safe for himself, let alone anybody else. ब्रॉक लेसनर को मैचेस के बाद इंजरीज और बुरे सरदर्द होने लगे थे। And to cope with all that was, my best friends, vodka and Vicodin. I was in a lot of pain, mentally and physically. There's a lot of pain in wrestling. I know countless wrestlers that are all dead today from having addictions to painkillers. I don't know what's addiction, Did I take too damn many pills? Yeah. Did I drink too much? Yes. Did I become aware of that I was drinking and taking too many pills? Yes, I did. लेकिन इसी दौरान ब्रॉक के साथ एक अच्छी चीज भी हुई। उसे WWE फीमेल रेसलर सेबल से प्यार हो गया। वो उससे 10 साल बड़ी थी, लेकिन ब्रॉक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे वैसे भी मैच्योर और सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद थीं। सेबल शादीशुदा थीं, लेकिन उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ अपने पति मार्क मीरो पर चीट किया। एक वॉइस नोट के जरिए मीरो को इसके बारे में पता चला। The message was from a man saying, "Hey, I'm really sorry about last night. I was a little, aggressive or whatever." I said, "When I find out who this guy is, I'm going to beat the tar out of him." And then I found out it was Brock Lesnar. This gives forgiveness a whole new meaning. ब्रॉक लेसनर और सेबल की शुरुआत कोई रोमांटिक कहानी जैसी नहीं थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में लेसनर दोनों के बीच हुई एक लड़ाई का जिक्र करते हैं। वो एक बड़ी गलती के बारे में लिखते हैं, इतनी गंभीर कि सेबल उनसे भागकर फ्लोरिडा लौट गई थी। लेसनर ने उससे कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश की, लेकिन सेबल ने फोन नहीं उठाया। 2 हफ्तों बाद लेसनर खुद फ्लोरिडा पहुंचे। वो उसके घर गए, लेकिन सेबल वहां नहीं थी। वो घर में जबरदस्ती घुस गए। ये सब सुनने में स्टॉकिंग जैसा लगता है और सेबल इससे कुछ हद तक डर भी गई थी, लेकिन दोनों ने इसे आपस में सुलझा लिया। 1 हफ्ते बाद लेसनर ने ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर उसे प्रपोज किया और सेबल ने हाँ कह दिया। लेकिन WWE टूर के साथ साथ अपनी शादी संभालना ब्रॉक के लिए बहुत ज्यादा था। वो इसे बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वो सेबल के साथ WWE छोड़ना चाहते थे। लेसनर ने प्रोड्यूसर्स को अपने प्लान्स के बारे में बता दिया। उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की गई। You get a grumpy Brock some days, and you attribute that to he's young, it's the first time he's doing a lot of this, and you'll get used to it, kid. Come on, you'll get used to it. And for some people, that's just, they don't want to get used to it. लेसनर अब और नहीं सह पा रहे थे।
उन्हें अब सुइसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। Brock Lesnar left, not because he wanted to go out in the world, because he got tired. Brock Lesnar left at the right time, because if he had stayed, there'd be no Brock Lesnar. विंस मैकमैन इससे बहुत ज्यादा नाराज थे। ब्रॉक लेसनर उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और अब वो सब कुछ छोड़ देना चाहते थे। उसे नेक्स्ट टॉप सुपरस्टार बनाने की पूरी प्लानिंग थी। ब्रॉक लेसनर पहली चॉइस थे, जॉन सीना नहीं। He was the first choice, and rightfully so. It was his table. He just decided not to sit at it. If Brock Lesnar would have stayed in the WWE, you would not know the name John Cena today. ब्रॉक लेसनर ने एक टर्मिनेशन अग्रीमेंट साइन किया जिसके मुताबिक वो 2010 से पहले रेसल नहीं कर सकते थे। इस फैसले के साथ ब्रॉक लेसनर ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया जिसमें सब कुछ था। 7 साल $45 मिलियन, करीब 6.4 मिलियन हर साल। ब्रॉक लेसनर ने अपना आखिरी मैच रेसलमेनिया 20 में गोल्डबर्ग के खिलाफ लड़ा। Neither one of us wanted to be there. Why didn't you want to be there? Because it's WrestleMania 20. Because I didn't give it. यह पहली बार था जब इंटरनेट की हेडलाइंस रिंग के अंदर के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही थीं। फैंस जानते थे कि ब्रॉक लेसनर WWE छोड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी निराशा छुपाई नहीं। And to have him go out there and sense the disappointment that the audience was experiencing had to be devastating for them. To have the audience disconnect that obviously from what you're doing is you almost feel like you're standing out there naked. It's a horrible feeling. बैकस्टेज माहौल काफी खराब था। कई कॉलिग्स बेहद निराश थे। ब्रॉक को एक बहुत बड़ा पुश मिला था और सबने मिलकर उसे टॉप पर पहुंचाया था, उसे स्ट्रॉन्ग दिखाया था और अब वो सब कुछ छोड़कर जा रहा था। ये सोशल प्रेशर भी उनके जाने की एक बड़ी वजह बना। ब्रॉक लेसनर बैकस्टेज की लगातार सोशल इंटरैक्शन से परेशान थे। WWE ऑफिशियल्स ब्रॉक लेसनर से और ज्यादा उम्मीद करते थे। एक टॉप गाय के तौर पर उन्हें अप्रोचेबल होना चाहिए था, एक लीडर और दूसरों के लिए रोल मॉडल। लेकिन ब्रॉक लेसनर को स्मॉल टॉक से नफरत थी। वो इंट्रोवर्टेड थे, जिसे कई लोग शाइनेस या इनसिक्योरिटी समझ लेते थे, लेकिन ये एक गलतफहमी थी। इंट्रोवर्ट्स को रिचार्ज होने के लिए समय चाहिए होता है। उनकी सोशल बैटरी जल्दी खाली हो जाती है। ब्रॉक लेसनर के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। उनकी सोशल बैटरी लगातार खाली रहती थी और उन्हें रिचार्ज होने का मौका ही नहीं मिलता था। I think he's fine to keep his walls up and keep everybody away. You know, I think there's a part of him that likes to be intimidating to people. You know, and that may be because he just doesn't want people getting close to him. I just don't like being around a bunch of people. That's just who I am. That's why I live out in the middle of nowhere. That's why I got a 8-foot fence around my property. That's why I shut the gate when I come and go. That's just who I am. ब्रॉक लेसनर को शांति और सुकून चाहिए। अपने पेरेंट्स की तरह उनका भी एक रैंच है। कोई नेबर्स नहीं, कोई स्मॉल टॉक नहीं। प्रॉपर्टी पूरी तरह सील्ड है। The spotlight takes a lot out of me, and so I need to go back and get grounded and crawl back into my cave. I tried the whole suburb thing when I first moved. It just didn't feel like home. You know, I grew up on the farm, so I went out and found this acreage. I got 43 acres. I like to wake up in the morning and feel like I'm in the country. I just don't put myself out there to the fans and prostitute my private life to everybody. ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ एक बार कैमरा क्रू को अपनी प्रॉपर्टी पर आने दिया। ये वही रेयर क्लिप्स हैं। Thank you so much. Your driveway is like long. It's long. Sometimes we forget the mail when we come home in the car or something, and we just go down and pick the mail up in the four-wheeler. 2006 में ब्रॉक लेसनर और सेबल की शादी हो गई। कंट्री लाइफ में शिफ्ट होना एक बड़ा एडजस्टमेंट था। Reina, you know, she's from Florida, and the first time I ever brought her to my house, she fell in love with it. She thought this was just the greatest thing. एक इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर से पूछा गया, आपने अपनी पत्नी के लिए सबसे रोमांटिक काम क्या किया है? उन्होंने एक प्रैंक का किस्सा सुनाया। उन्होंने सेबल से कहा कि उनके 1 साल के बेटे ने उसकी वेडिंग रिंग निगल ली और सेबल इसे सच मान गई थी। And my poor wife took it upon herself to search for the wedding ring in dirty diapers. I thought that was funny. लेकिन बाद में सेबल को मनाने के लिए ब्रॉक लेसनर ने उसे एक नई और बहुत महंगी वेडिंग रिंग गिफ्ट की।
we're sharing a cell phone. I'm not exactly without a cell phone. We've decided that we no longer need to have the internet. It's a huge waste of time for us. We spent way too much time on it doing unnecessary things, and what we've actually done with our life now is try to simplify it a little bit. Makes it a lot easier. We thought about getting rid of the TV, but I gotta watch my hunting show. Oh my God. I'm into hunting and fishing and spending time with the fam and just being low key. Snowmobiling, ice fishing. Oh yeah. Bow hunting. We just put 2 arrows in that deer, and he's dead. We stuck up on that sucker. I grill my own steak, and I love to grill. I spend a lot of time on my deck, on my patios. I've got lots of land. I don't like seeing my neighbors. I like to see my land and grill a steak and have a cold beer or a cold rye and Coke whiskey, and grill me a ribeye, medium well. ब्रॉक लेसनर को आउटडोर्स रहना पसंद है। अपने रैंच पर खेतों, जंगलों और झीलों के बीच नेचर उनका असली घर है। यहीं उन्हें वो शांति और सुकून मिलता है जो उन्हें रेसलिंग की चमक दमक भरी दुनिया में कभी मिल नहीं पाया। ब्रॉक लेसनर हर काम खुद ही करते हैं। उन्हें अपने हाथों से काम करना पसंद है। वो अपनी मशीन्स और घरेलू सामान की मरम्मत खुद करते हैं। Before my workout, it started snowing today, and I get in my tractor and plow the driveway out a little bit. You can take the boy out of the country, but you can't take the country out of the boy. I built my own gym. I designed it and made it how I wanted it. I built this building. I wanted a gym. I wanted to be able to wrestle. I've got a full-size wrestling mat in there. I've got heavy bags. Just the meat and potatoes. I love my gym. उन्होंने अपने रेंच पर ही अपना खुद का जिम और ट्रेनिंग हॉल बना रखा है। सब कुछ सिर्फ अपने लिए, कोई दूसरे लोग नहीं। जब इक्विपमेंट पहली बार आया तो मशीन्स लेसनर के लिए छोटी थीं और उनमें वेट लिमिट भी काफ़ी कम थी। इसके बाद ब्रॉक ने अपने साइज और स्ट्रेंथ के हिसाब से सभी मशीन्स खुद बनवाईं। घंटों तक ट्रेनिंग, वो भी खुद से। यही एकमात्र तरीका था जिससे ब्रॉक लेसनर खुद को काबू में रख पाते थे, क्योंकि बचपन से ही ब्रॉक को एक्सट्रीम एंगर इश्यूज थे। वो एक टाइम बॉम्ब की तरह थे जो कभी भी फट सकता था। WWE छोड़ने के बाद ब्रॉक लेसनर एक नई चुनौती की तलाश में थे और 2004 में उसने अमेरिकन फुटबॉल ज्वाइन किया। वो सबको साबित करना चाहते थे, लेकिन वहां भी उसके गुस्से को बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। मिनेसोटा वाइकिंग्स और कैंसस सिटी चीफ्स के बीच एक जॉइंट ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक ओपोनेंट ने उनके टीममेट पर गलत तरीके से हमला किया। ब्रॉक लेसनर ने बस इतना पूछा, कौन था? जवाब अगली ही गेम में मिला। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा और फुटबॉल फील्ड के बीचों बीच उसे सुप्लेक्स दे दिया। लेकिन अगला झटका अप्रैल 2004 में आया। एक गंभीर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, टूटा हुआ जबड़ा, टूटा हुआ हाथ, ग्रॉइन स्ट्रेन, पेट में टिश्यू डैमेज, यहां तक कि उसके टेस्टिकल्स हफ्तों तक सूजे रहे। इन सब के बावजूद कई NFL टीम्स ने इंटरेस्ट दिखाया। प्रेपरेशन गेम्स में ब्रॉक लेसनर को एक बात साफ समझ आ गई, वो असल में फुटबॉल प्लेयर नहीं थे। वो स्ट्रैटेजी कम और अपनी स्ट्रेंथ का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। वो बार बार लड़ाइयों में शामिल रहते थे। It was a way for me to get out of doing something I didn't know what the hell I was doing. So, well, let's start a fight. मिनेसोटा वाइकिंग्स ने उन्हें बाहर कर दिया। हालांकि उन्हें NFL यूरोप में जारी रखने का मौका मिला, पर लेसनर ने मना कर दिया। ब्रॉक लेसनर एक बार फिर डिप्रेसिंग डार्क फेज में फिसल गए। वो अपने बच्चों से बहुत कम मिलते थे। जिम्मेदारी का बोझ अभी भी उन्हें भारी लगता था और इससे निपटने के लिए वो लगातार ड्रग्स और शराब की तरफ भागते रहे। एक रात शराब के नशे में वो फीनिक्स में भटक रहे थे। वहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ। लड़खड़ाते हुए वो एक टैटू स्टूडियो में घुस गए और बिना सोचे समझे पेट पर एक तलवार का टैटू बनवाया, नाभि से सीधे गले तक। I asked him, I was like, what was that tattoo for? And he's like, it felt like I always had a knife at my throat. अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं, ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मेरे गले पर तलवार रख दी हो। मैंने टैटू बनवाया ताकि उस दर्द, उस डर को हमेशा याद रख सकूं।
ये तलवार लेसनर के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये दर्द को बाहर निकालने का एक तरीका था। सारा गुस्सा, निराशा और बेचैनी, ये सब उसने अपनी छाती पर गुदवा लिया। लेसनर के और भी डार्क टैटूज हैं। दांत दिखाता हुआ एक डीमन का सिर और उसके नीचे एक लाइन, किल देम ऑल। ब्रॉक लेसनर रेसलिंग में वापस आना चाहते थे, लेकिन WWE में नहीं। ब्रॉक लेसनर को जापान की रेसलिंग लीग से काफी अच्छे ऑफर्स मिले। लेसनर उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके WWE एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त थी कि वो 2010 से पहले किसी भी दूसरी कंपनी के लिए रेसल नहीं कर सकते थे। लेसनर फिर भी नहीं रुके। 2005 में उसने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में अपने पहले ही मैच में IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। WWE ने तुरंत एक लॉ सूट फाइल कर दिया। इसके जवाब में ब्रॉक लेसनर ने काउंटर सूट दायर कर दिया। ये लीगल बैटल महीनों तक चलती रही। आखिरकार दोनों साइड्स ने अपने लॉ सूट्स वापस ले लिए। बातचीत शुरू हुई। WWE ब्रॉक लेसनर को वापस लाना चाहती थी। एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार था, लेकिन लेसनर ने मना कर दिया। ब्रॉक लेसनर ने अपना टाइटल न्यू जापान के टॉप स्टार्स शिंसुके नाकामुरा और अकेबोनो के खिलाफ डिफेंड किया, लेकिन बैकस्टेज माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। ब्रॉक लेसनर को अनअप्रोचेबल, डिफिकल्ट और डिसमिसिव माना जाता था। उन्हें जापानीज कल्चर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एरोगेंट थे और बैकस्टेज घुलने मिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते थे। ब्रॉक लेसनर का रवैया कई जापानीज रेसलर्स को डिसरिस्पेक्टफुल लगता था। जुलाई 2006 में न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने ब्रॉक लेसनर से उसका टाइटल छीन लिया। वजह कुछ वीजा इश्यूज बताई गई, लेकिन असल कारण पैसे और डेट्स थे। लेसनर अपनी पे और वर्किंग कंडीशंस से नाखुश थे। उसे लगा कि उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए उसने टाइटल बेल्ट वापस देने से मना कर दिया। वो इसे लगभग 1 साल तक अपने साथ लेकर घूमते रहे, मानो वो अब भी चैंपियन हो। 2007 में जाकर ही उसने ऑफिशियली ये टाइटल कर्ट एंगल को ड्रॉप किया और एक बार फिर ब्रॉक लेसनर के पास कुछ भी नहीं बचा। जापान में रेपुटेशन तबाह, WWE पीछे छूट चुका था, फुटबॉल उनके लिए नहीं था और बैंक अकाउंट तेजी से खाली हो रहा था। उसके घर और बड़ी प्रॉपर्टी संभालने के लिए पैसों की जरूरत थी। बहुत सालों बाद लेसनर को फाइनेंशियल प्रेशर महसूस हुआ, लेकिन लेसनर के लिए ये फीलिंग नई नहीं थी। वो गरीबी में ही बड़े हुए थे। I went from, making a lot of money and having a lot of things, but it's not all about having the nicest vehicle, People are surprised because they've seen what I used to drive, and now I drive the Red Rocket, my little car. Hop in the luxury sedan. It ain't all about looking good. I don't care. ब्रॉक लेसनर इनकम के लिए एक नया सोर्स ढूंढ रहे थे। उन्होंने खुद से पूछा कि वो क्या चीज दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, और जवाब लड़ाई के आसपास ही आकर रुका। ब्रॉक लेसनर ने अपना पहला MMA मैच लॉस एंजलिस में लड़ा। एक एक्सपीरियंस जुडोका के खिलाफ उसने अपने ओपोनेंट को जमीन पर घसीटा और हैमर पंचेस मार मारकर ढेर कर दिया। लेसनर ने उसका मजाक बना दिया। लेसनर सबसे बड़े MMA स्टेज पर पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने UFC का टिकट खरीद लिया। I jumped the security railing, ran to the octagon, grabbed Dana by the shoulder, spun him around, introduced myself. He pulled me back and we had a meeting. I said, you sign me, you won't go wrong. If I can't sell pay-per-view buys for you, don't have me back. ex-WWE रेसलर ब्रॉक लेसनर का एक रियल UFC फाइट में उतरना, ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी। People, ram down your throat and say you can't do something. Yeah. Love those people. इस डील के बाद उनकी जिंदगी का टफेस्ट ट्रेनिंग फेज शुरू हुआ, रोज की ट्रेनिंग, जब तक हाथों से खून न निकल आए। I sweat profusely. I mean, when I start working out, I'll drop anywhere between 8 to 12 pounds. I put time, blood, sweat, tears into my workouts. Now the lion's hungry. Feed me. ब्रॉक लेसनर के पहले ओपोनेंट थे फ्रैंक मीर, दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स में से एक। लेसनर ने डोमिनेंट और इम्प्रेसिव शुरुआत की, लेकिन एक पल की चूक में फाइट हाथ से निकल गई। फ्रैंक मीर की नी बार से ब्रॉक बच नहीं पाए। I just saw my entire life just fall off the cliff.
because I thought, well, Dana's not going to re-sign me. I lost. Dana came back and he was just bouncing off the walls. He's like, dude, that was awesome. Ooh, that was a fun fight, dude. That was so fun. Dude, it ain't over. I hope it ain't. हार के बावजूद लेसनर ने एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा था। वो इतने डोमिनेंट थे कि फ्रैंक मिलर की जीत पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। डेना वाइट को आखिरकार वो मिल गया था जो उन्हें चाहिए था, एक ऐसा फाइटर जो पैसा बनाकर दे सके, एक ऐसा एथलीट जो दिखता और चलता भी बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह था। और इसी तरह ब्रॉक लेसनर को दूसरा मौका मिला हीथ हैरिंग के खिलाफ, एक टफ वेटरन। लेकिन हैरिंग ने एक बड़ी गलती कर दी, उन्होंने लेसनर को उकसा दिया। As a competitor your whole life, you don't want to fight off of aggression. It's a competition. That's interesting. You want to go out and cool, calm, and collective, calm before the storm. Everything was fine until he said, I'm going to show this MFer that this ain't WWE, that this is for real. That lit a fire under my ass. वो पहले ही भड़के हुए थे। बेल बजते ही उन्होंने हीथ हैरिंग के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। इसके बाद जो हुआ वो प्योर डोमिनेंस था। लेसनर ने उसे फ्लोर पर चेस किया और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से कंट्रोल बनाए रखा। 3 राउंड्स तक सिर्फ रॉ एग्रेशन और ब्रूट फोर्स चलता रहा। इस विक्ट्री के साथ लेसनर ने खुद को साबित कर दिया था, My number one goal is to be the best heavyweight in the UFC. Hopefully I get to utilize these a little bit. UFC 91 पर उसे एक टॉप टाइटल मैच मिला। रैंडी कूचर के खिलाफ ब्रॉक लेसनर इस फाइट में अंडरडॉग थे। कई लोगों को लगा कि रैंडी कूट्योर उन्हें टेक्निकल लेवल पर आसानी से हरा देंगे, लेकिन दूसरे राउंड में लेसनर ने एक हैमर पंच मारा जिससे वो ढेर हो गए। UFC heavyweight champion of the world, Brock Lesnar! किसी ने भी ये टाइटल इतनी जल्दी नहीं जीता था। ब्रॉक को अपना खोया हुआ पैशन वापस मिल गया था। Brock liked that style because that lifestyle was training at home 6 months and then going to an event one time to fight. That's Brock's cup of tea. That way Brock can stay at home, train, spend time with his family, do his hunting and fishing. He doesn't have to deal with the real world. He thrives on this. It makes him happy. And not only is this exactly what he wants to be doing, I think it's going to be a long-lasting career for him. ब्रॉक लेसनर की अगली फाइट फ्रैंक मिलर के साथ थी, वही आदमी जिसने उसे उसके पहले मैच में हराया था। लेसनर रिंग में लड़ने नहीं, बदला लेने के लिए उतरे थे और उन्होंने इस मैच में अपने अंदर भरा हफ्तों का गुस्सा पूरी तरह निकाल दिया। He ran around the ring, flicking off the crowd. In the post-fight interview, he challenged the UFC sponsorship of Bud Light by saying he'd like a Coors Light. Dana White was very upset, and he had every right to be. इसके बावजूद UFC 100 एक कंप्लीट सक्सेस था। लेसनर ने इस शो को उस समय तक का बेस्ट सेलिंग UFC इवेंट बना दिया। वो सबसे बड़े पे पर व्यू ड्रॉ थे। ब्रॉक लेसनर ने फ्रैंक मिलर पर अपनी जीत के साथ कॉम्बैट स्पोर्ट्स के टॉप पर जगह बना ली थी, लेकिन 2009 की लेट समर में वो बीमार पड़ गए। उस वक्त किसी को भी इसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं था। उन्हें लगातार स्टमक पेन्स और डायरिया होने लगा, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि उनका मन नहीं था। Stubborn me, I didn't get a scan of my stomach, and I decided to drive up to Canada and sit in my deer stand. बीमारी के बावजूद ब्रॉक लेसनर ने शेन कार्विन के साथ मैच लड़ा, जिसके नाम 12 फर्स्ट राउंड विंस का रिकॉर्ड था। शेन कार्विन एक तूफान की तरह आए। पहले राउंड में उन्होंने ब्रॉक लेसनर पर बार बार वार किए। लेसनर लड़खड़ाए, नीचे गिरे और दर्जनों मुक्के झेले, लेकिन लेसनर सरवाइव कर गए। वो शांत रहे, खुद को बचाए रखा और सांस लेते रहे। और दूसरे राउंड में उसने पासा पलट दिया। उसने तुरंत टेक डाउन की कोशिश की, पोजीशन में आए और फिर आर्म ट्रायंगल चोक लगा दिया। लेसनर ये मैच भी जीत चुके थे, लेकिन उसकी बीमारी और बिगड़ गई।
अपने भाई के घर पर वो अचानक बेहोश हो गए। हालत इतनी तेजी से बिगड़ रही थी कि एम्बुलेंस के आने तक बहुत देर हो जाती, इसलिए ब्रॉक लेसनर को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया। लेसनर को डायवर्टिक्यूलाइटिस डायग्नोस हुआ। उनके लार्ज इंटेस्टाइन में भारी सूजन थी, उनका शरीर जहर से भर चुका था और आंतें फटने की कगार पर थीं। Diverticulitis almost killed Brock Lesnar. My doctor came into my room when I got to the States and said, "Listen, I'm going to try to save your fight career, but if I can't and I gotta save your life, I'm saving your life before I'm saving your career, son." लेसनर बाल बचे। डॉक्टरों का मानना है कि उनका लाइफस्टाइल इस बीमारी की वजह बना। बहुत ज्यादा मीट, बहुत कम सब्जियां और हद से ज्यादा शराब। उन्हें अपनी डाइट पूरी तरह बदलनी पड़ी, एक फीकी डाइट, हाई फाइबर फूड के साथ। ब्रॉक को इससे नफरत थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें खरगोश की तरह खाने का कोई शौक नहीं है। 1 साल बाद ब्रॉक लेसनर ने केन वेलास्केस के खिलाफ मुकाबला किया। स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों गायब थे। उस शाम लेसनर ने अपना टाइटल खो दिया और इस हार ने उन्हें अंदर से बदल दिया। Most of my life, I went through life living that I'm indestructible, and when you get defeated, it humbled me. जैसे ही लेसनर अरीना से बाहर निकले, एक इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला। The Undertaker just called me a couple days ago and apologized for that whole thing. Yeah, him and Brock have some beef, and Brock walked by him and he said something to him, and it blew up into that whole thing that happened. You want to do it? You are saying it is a legit beef, It correct? is. I'm not. I don't. It is a legit. I got a problem with him. द अंडरटेकर ने बाद के इंटरव्यूज में कहा कि वो लेसनर को वापस रेसलिंग की दुनिया में खींच लाना चाहते थे। उन्हें लेसनर को उकसाने के लिए भेजा गया था, लेकिन लेसनर के पास बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। इसी दौरान वो फिर से पिता बने। टर्क लेसनर का जन्म 2009 में हुआ, ड्यूक लेसनर का 2010 में, और उनकी सूजन दोबारा बढ़ गई। एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने उनके कोलन के लगभग 12 इंचेस बाहर निकाल दिए। एक इंटरव्यू में लेसनर ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनके पेट में शॉटगन चला दी हो और कोई उस जख्म पर नमक लगाकर कांटे से चुभा रहा हो। इसके बावजूद ब्रॉक लेसनर ने एक और फाइट की, लेकिन एलिस्टर ओवरीम ने उसे हरा दिया। इस बीमारी ने लेसनर का UFC करियर खत्म कर दिया। ये था लेसनर की डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे लेसनर इतने सालों बाद पार्ट टाइम स्केड्यूल पर WWE में वापस आए, और उस स्कैंडल के बारे में भी जिसकी वजह से लेसनर आज एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुके हैं। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।